Hello students, Namaste. As we are dealing in this week with the kinematics, we have dealt with the topic motion in one dimension. 1D motion is fully covered. Now turn to go for considering about the motion in plane, that means 2D motion. Second section of the kinematics of NCERT. Motion in plane consists of two topics, vectors and projectile. So today I am going to discuss about the vectors. Firstly, as we know, the physical quantities are categorized in the two groups, scalar quantities and the vector quantities. The such quantities which are completely specified by the magnitude or size alone are known as the scalar quantities. Simply, scalar quantities. The two physical quantities are categorized, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities. These quantities are completely specified. These quantities are completely specified by magnitude or size alone. For example, length, mass, volume, density, work, energy, power, all these quantities are specified completely by the magnitude only. No need to tell something about the direction of these quantities. But on the other hand, the second categorization is for the vector quantities. Vector quantities. These quantities have both magnitude as well as direction. Magnitude means size. Magnitude or size as well as direction. These quantities have both magnitude or size as well as direction, known as the vector quantity. For example, velocity, acceleration, force, linear momentum, electric field, magnetic field, etc. These quantities are specified completely by both magnitude and direction. That means to describe completely about these quantities, there is the need of both magnitude as well as direction. So such quantities are known as the vector quantities. Physical quantities are categorized in two groups, scalar and vector quantities. Now turn goes for considering about the representation of a vector. How to represent a vector? Representation of a vector. Simply, this is the vector, this is the tail, and this is the head of arrow. Represented by, this is the head, represented by an arrow. Length of arrow will give the magnitude, while arrowhead
arrowhead gives the direction. Arrowhead represents the direction of vector. मैं आपसे कहूं कि सिंपली समझेंगे, इस पेपर वेट का जो मास है वो कितना है, इस बॉडी का मास कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस बॉडी वेज 100 ग्राम 200 ग्राम, ये बोलेंगे आप? ये तो नहीं बोलेंगे कि इस बॉडी का वेट 100 ग्राम ऊपर है, 100 ग्राम नीचे है, 100 ग्राम इधर है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। हम इसके बारे में आप बोलेंगे यार इसका वजन क्या है, तो आप बोलोगे सर 100 ग्राम। तो ये इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया इसके वजन के बारे में। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता कि यहां से घंटाघर किधर है, तो आप क्या बोलोगे? सर 200 मीटर। क्या ये घंटाघर के पोजीशन का, लोकेशन का, डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ? नहीं, आप बोलोगे सर 200 मीटर इधर। सर घंटाघर इज लोकेटेड 200 मीटर फ्रॉम हियर टुवर्ड्स दिस साइड, 200 मीटर इस तरफ। जो आप इस तरफ बोले वो क्या हो गया? डायरेक्शन। तो घंटाघर के लोकेशन को, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? 200 मीटर इस तरफ। तो 200 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड, एरो लेंथ, और इस तरफ क्या हो गया? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके बारे में चर्चाएं सरेआम करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड पड़े, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कितने फोर्स से वो उस रिक्शा को पुश कर रहा था, कितने फोर्स से रिक्शे को पुश कर रहा है पीछे से जो लेबर है, तो आप बोलोगे सर वो 10 न्यूटन के फोर्स से आगे पुश कर रहा है, 10 न्यूटन के फोर्स से उस तरफ जा रहा है, घंटाघर तरफ जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर वो 100 मीटर फोर्स से आजाद चौक की तरफ जा रहा है, 100 न्यूटन फोर्स से आजाद चौक की ओर पुश कर रहा है। तो की ओर जो बोला आपने वो डायरेक्शन हो गया। स्पीड क्या है उस ट्रक की? सर वो ईस्टवर्ड जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड हो गया, ईस्टवर्ड क्या हो गया? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड पड़े, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एरो से। एरो का लेंथ क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। एरो का हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन। Now turn goes for the position vector. Now turn goes for the position vector. Turn goes for the motion in plane. Vectors पर हम फोकस कर रहे हैं। वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल दो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब वर्ड्स में इसके इंपॉर्टेंसी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप सोचिए आपकी क्लास 11th के फिजिक्स में वेक्टर है और क्लास 12th के मैथ में वेक्टर एंड 3D नाम का चैप्टर है, विच इज आस्क्ड फॉर द 17 मार्क्स अकेले। वेक्टर एंड 3D मतलब कम से कम 9 मार्क्स का इस एग्जाम में आया था वेक्टर। तो यहाँ फिजिक्स में है वेक्टर क्लास 11th में, क्लास 12th में वेक्टर नाम से मैथमेटिक्स में चैप्टर है, वहां आपको करना है। और वेक्टर पूरे फिजिक्स में आपको वेक्टर पकड़ना होगा। डायरेक्शन की बात जब भी करनी होगी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। हालांकि एक बात और है कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, आपने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? 2 एम्पियर ईस्टवर्ड। Electric current is what? 2 ampere rightward. So 2 ampere is the magnitude and rightward is the direction. So but having both magnitude as well as direction, the electric current is not a vector quantity because it does not follow the vector laws of addition. That means having magnitude and direction is the necessary condition for a quantity being vector to be a vector, but it is not sufficient. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ध्यान समझेंगे, नेसेसरी है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने भर से वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाएगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ सर्टेन लॉज हैं, अगर उन लॉज को फॉलो करेगा तब वो वेक्टर होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन लॉज को फॉलो नहीं करता। तो
now turn goes for considering about the position vector. What is the position vector? A vector drawn from, जैसे मैं कह दूं आपसे कि कोई पार्टिकल किसी पर, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द ओरिजिन. कोई पार्टिकल है वो टाइम टी पर पी पर है. एक पार्टिकल मूव कर रहा था किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उसका लोकेशन कहाँ है, पॉइंट पी पर. आप ओरिजिन से पी को मिला के एक वेक्टर खींच दें, यही हो गया आपका पोजीशन वेक्टर. इसी का नाम है पोजीशन वेक्टर. कुछ भी जो डिस्टेंस है, आर है तो बोल दो आर डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक आर डिस्टेंस पे है तो आप बोल दो आर वेक्टर. सिंपली पोजीशन वेक्टर. A vector drawn from origin, a vector drawn from origin to the position of a particle at any instant a vector drawn from origin to the position of a particle at an instant is called position vector. सिंपली हम आपसे कहते हैं कि पार्टिकल है वो पर्टिकुलर टाइम टी पर पॉइंट पी पर था, तो आप ओरिजिन से पॉइंट पी को मिला के वेक्टर ड्रॉ कर देंगे. यही जो वेक्टर होगा इट विल गिव द इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल व्हिच एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. अब ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. इट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. फॉर अ मूविंग पार्टिकल from initial position to final position. It is the directed line segment for a moving particle from initial position to final position. Suppose that a moving particle, हम इन मोशन इन प्लेन की बात ही कर रहे हैं 2D, मतलब यहां किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नीड होगी, दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट. जैसे मैं बोल दूं आपसे एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द वॉल, एक कीड़ा दीवार पर चढ़ रहा है, उस कीड़े का इंस्टेंट पोजीशन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि वॉल जो है, जो दीवार है वो मेरे फुट से 2 फीट डिस्टेंस पे है और वॉल पर वो 1 फीट की हाइट पर है, तो एक्स एब्सिसा और 1 क्या हुआ, ऑर्डिनेट. 2,1 उसका लोकेशन हुआ. तो इसीलिए मोशन इन प्लेन चैप्टर का नाम है. तो मैंने ये कहा कि सपोज दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इनिशियली एट पॉइंट पी एट टाइम टी and after some time it will reaches to point P dash at a time T dash. At a time T dash the particle will reaches at point P dash. Thanks. Initially the particle is moving at a particular time T, instant T the particle is at point P. After some time the particle reaches to point P dash. Initially OP vector is the position vector. Suppose that r1 vector of the particle at instant t. OP dash vector is the position vector of particle when it is at point P dash. The line joining P to P dash. Look at here. The line segment for moving particle from initial position to final position. PP dash is the position vector. PP dash is the position vector. Displacement vector. PP dash is the displacement vector, and the PP dash is equal to OP dash minus OP. Listen,
पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। पी से आपको लगता है पॉइंट मान लीजिए पहले ए पर था फिर बी पर पहुंचा, छोड़े इसको। इट इज नोन एज द ए बी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको ऐसे बोलेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। सो वी कैन से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज द ए बी वेक्टर। So this is the displacement vector of a moving particle. Look at the board. Simply समझिए, नोट कर लिया, नोट करते चले। This is the displacement vector of a particle. Displacement vector of particle in time interval. In a time interval t dash minus t. Displacement vector of a particle in time interval t dash minus t. मेडिकल इज मेडिकल के डेमो बता, डेमो कम बा 16,000 पावन कैसे बढ़े, कैसे बढ़े कौन बताया? नोट कर ले सिंपली, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। Now coming good for some important definition of the vectors. कुछ important definition vectors की बात करूंगा मैं। कुछ important definition vector के कुछ terms ऐसे जिनसे आपको लीड मिलेगा आगे के टॉपिक्स में। अच्छा चैप्टर है वेक्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। Now coming good for the कुछ important terms में some important terms लेता हूं, definitions लेते हैं। Some important definitions. The first one is equal vectors. Equal vectors. मतलब equal in magnitude, equal in magnitude and in same direction and drawn in same direction। जैसे ये एक वेक्टर A है और दिस इज द वेक्टर B, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही, दोनों के वेक्टर्स की लेंथ सेम है, एरो की और डायरेक्शन भी सेम है, तो आप बोलेंगे ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। वेक्टर को किसी भी क्वांटिटी को जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन भी, उसमें उस क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, एरो।
जैसे हम कहें आपसे फोर्स वेक्टर है, फोर्स के ऊपर क्या लगा देंगे एफ, वर्क स्केलर है तो केवल वर्क लिखा रहेगा, पावर स्केलर है तो केवल पावर लिखा रहेगा। ओके, जहां वही वेलोसिटी अगर होगी क्या लिखा रहेगा v वेक्टर। तो जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा के। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए इक्वल वेक्टर। तो ये पहला पॉइंट हुआ इक्वल वेक्टर्स का। सेकंड वन इज द नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड but drawn in opposite direction. Equal in magnitude but drawn in opposite direction. Equal in magnitude but drawn in opposite direction. Suppose that this is the vector A and this one is the vector B. सेम लेंथ है बट एरो का हेड अपोजिट है। ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हुए, तब क्या बोलेंगे वेक्टर A इक्वल्स माइनस बी वेक्टर, ऐसे बोलते हैं वेक्टर A इक्वल्स माइनस बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, जैसे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वेक्टर्स में 0, और इन दोनों में एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा कितना आएगा 180 डिग्री। ध्यान समझने, एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा इक्वल क्या आया 180 डिग्री। नाउ टर्न गोज फॉर कंसिडरिंग अबाउट द कोलिनियर वेक्टर्स। टाइप्स को क्लासिफाई कर रहा हूं मैं, कोलिनियर वेक्टर्स। टर्न गोज फॉर कंसिडरिंग अबाउट द कोलिनियर वेक्टर्स। Turn good for consider about the collinear vectors. Equal or unequal magnitude? Equal or unequal magnitude? Equal or unequal magnitude, but drawn in same direction. Equal or unequal magnitude, but drawn in same direction. मैग्नीट्यूड इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। ये ऐसे ये हुआ, चाहे ये दोनों हो गए, ये वेक्टर ए हुआ मान लो और ये वेक्टर बी हो गया। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो या अनइक्वल वाला भी हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो सेम हो। इनको क्या बोलते हैं, मतलब इनके से भी थीटा क्या होगा 0, इनको भी बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। Now turn goes for considering about the co-initial vectors. Co-initial vectors. Co-initial vectors. गुड़िया बोलो नहीं, राधे राधे बोलना नहीं ना।
Term goes for considering about the co-initial vectors. The vectors having common initial point. The vectors having common initial points. जैसे यही पॉइंट O है, अब इसी से हमने एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर दिया, A वेक्टर, एक वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, B वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ये बोल दिया C वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ये सारे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर हैं। को इनिशियल वेक्टर। नाउ टर्म गोज फॉर द यूनिट वेक्टर। ये तो फोर्थ पॉइंट रहा। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में फिफ्थ पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर। द पॉइंट नंबर फिफ्थ इज व्हाट? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स। The vectors having common initial points, co-initial हो गए। Term goes for the unit vectors. Unit vector. It represents the direction of given vector. गिवन वेक्टर का डायरेक्शन दे। भाई एक बात तो आप जानते ही हैं, वेक्टर में दो बातें हैं। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी बराबर दो चीजें उसमें होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मिलते हैं इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। दोनों मिलेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी तैयार होगी। जैसे अगर कोई क्वांटिटी ए है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ए कैप से। ध्यान समझिए फिर से, यूनिट वेक्टर में वेक्टर के ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। जैसे ये कोई पूरी वेक्टर था तो ये हेड था और ये टेल था, तो ये एक कैप जो है वो डायरेक्शन दे रहा है पूरे वेक्टर ए का। ये पूरा वेक्टर ए था, उसका डायरेक्शन कौन दे रहा है? ए कैप दे रहा है। तो या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर के आगे मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऐसे भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं फोर्स में, फोर्स में दो बातें होंगी। मैंने कह दिया आपसे डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर एस वेक्टर इक्वल दो बातें। क्या डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स राइट बोल दिया मैंने, 10 मीटर टुवर्ड्स राइट। तो ये ओ से ए तक जो है ये 10 मीटर का होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स राइट। तो दो बातें, इसको लिखेंगे कैसे? एस का मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स है तो एफ वेक्टर इक्वल टू दो बातें, एफ का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। कुछ बुक वाले ऐसे सीधे लिखते हैं कि एफ डॉट एफ वेक्टर, बात वही है, केवल एफ लिखिए, एफ पर वेक्टर लगाएंगे तो मॉड लगाएंगे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हुआ। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो केवल यूनिट वेक्टर क्या होगा? केवल यूनिट वेक्टर क्या होता है? अब इस फॉर्मूले से आप देख ले, तो अगर कोई आपसे कहे कि केवल ए कैप क्या होगा, तो इधर ले आइए, क्या आया? वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड, यही होता है यूनिट वेक्टर।
किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट वेक्टर है नो डायमेंशन, केवल एक डायरेक्शन देगा, सिंपल। नाउ टर्न गोज फॉर द इंपॉर्टेंट टर्म्स में पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट टर्म्स में पॉइंट नंबर 6, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट origin forms orthogonal lines and the unit vector gives their direction. Mutually perpendicular lines meeting at origin forms orthogonal lines and the unit vectors gives their direction. Suppose that this is the origin, ये x axis है, this one is the y axis, this one is the z axis. x axis के along डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, i कैप। y axis के along डायरेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, j कैप। z axis के along डायरेक्शन के लिए k कैप। कहने का सेंस क्या है, ये पूरा समझिए, पूरा मोटो समझिए। जैसे मैंने कह दिया कि कोई एक बंदा है, वो ओरिजिन से चलना शुरू किया, o से, और ये O से चलता है टुवर्ड्स अलोंग एक्स एक्सिस,